أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today our topic of discussion is following the president. There is no political office in the world today that carries with it greater constitutional power and greater general responsibility than the American presidency. Time and events, law and personality have built the presidential office into an unparalleled position of the national leadership and world prestige. Conceived by its creators primarily as a symbol of national unity and the center of national authority, its rise to its present status has been a progressive development not without interruptions through alternating periods of national calm and national national crisis. All sorts of questions and problems have projected themselves into public discussions, some of them into legal actions concerning its structural details, the extent of its powers, and its relations with the other branches of the government. It has been one of the least static and one of the most controversial elements in the entire national government structure. It is a great office, and the necessarily brief treatment accorded it herewith hard to do it adequate justice. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो पावर्स प्रोवाइड की गई हैं तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू उन्होंने पहले दिया है, एक इंट्रोडक्शन सा आखिर में, जिसमें ये बताया गया है कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास जितनी पावर्स है उतनी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये president, as we discussed earlier in my last lecture, that the American president is not a born a chief executive of the
national government, but he is made executive head of the state and national government as well. So he is democratically elected president by the people of the United States of America. तो उसको जो and he is provided, yeah, he is granted powers in the Constitution of USA, and that Constitution was also made by the legislature, and that legislature also came from the uh, with the vote of people of USA. तो ये सारा ही जो प्रोसेस है वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस either to elect the members of Congress or either to elect the president of USA is a democratic process, and all these men, congressmen and the president, come through general election. वो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में लोग उनको अपना मैंडेट देते हैं, और वो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कोई बंदा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती जितनी यूएस प्रेसिडेंट के पास है। वो यूएस प्रेसिडेंट जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ a country that is a superpower in the world. तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है उसको उसका एक जो करेक्टर है वो एक यूनिक करेक्टर है इन नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को नेशनल यूनिटी की सिंबल भी करार दिया जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो सेंटर होता है नेशनल अथॉरिटी का। तो यू कैन से the American president is the center of the national government, and the centralized system of government is running in USA. The centralized arm of government, the concept of this form of government came from Islamic state. तो इस्लामिक स्टेट के अंदर ये बताया गया है कि अपनी एक जमात बना लें, जमात के साथ अल्लाह की मदद है, और जमात का एक अमीर मुकर्रर कर लें। ये ना हो कि जमात के जो जितने बंदे हैं वो कोई ये काम कर रहा है, कोई किसी की कोई ओपिनियन है, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो अमीर करेगा। तो ये है इस्लामिक कंसेप्ट। तो जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर डायरेक्टर्स होंगे 3 4 5, लेकिन उनका एमडी एक ही होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जनरल मैनेजर किसी फैक्ट्री के अंदर एक ही होता है जिसे जीएम कहते हैं, लेकिन उसके डिप्टी मैनेजर जो है वो 10 11 और 1000 जितने मर्जी वो रख ले, लेकिन जनरल मैनेजर एक ही होगा। ये है कंसेप्ट जो अमीर का कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, इसी को अडॉप्ट किया गया है वैसे में। लेकिन यूएस और यूके एंड अदर यूरोपियन नेशन जो है सिस्टम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, यानी वो कह रहे हैं कि पावर्स जो है, और यूएसए के अंदर तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरे मुल्कों के अंदर वो कहते हैं कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर जो है उनको निचली सतह तक डिवॉल्व कर दें। इस काम के लिए बेशक अमेरिका को जंग लड़ानी पड़े, किसी मुल्क के खिलाफ तो वो लड़ा दे। हिस्ट्री में इसकी एग्जाम्पल मिली है।
اس چیز سے ہم یہ چیز بھی اکسس کر سکتے ہیں جو اسلامک لاز ہیں، اسلامک پرنسپل جو ہے جو پرووائڈ کیے گئے ہیں ان قرآن اینڈ حدیث اینڈ ان سنہ آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کوئی انسان بھی عمل کرے گا تو اس کو فلاح ہی پائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل کہ سچ بولنا، تو اگر سچ بولنے کے فائدے ہیں تو وہ چاہے مسلمان بولے یا کافر بولے، فائدہ تو اس کو ملنا ہی ہے۔ سچ بولنے کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں، بہت ساری چیزیں جو اب یہ سینٹرلائز کام ہے گورنمنٹ اسلام نے کیا ہے، تو یو ایس اے کے اندر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، تو دیکھ لیں کہ وہ ورلڈ پاور یو ایس اے کا جو پریزیڈنٹ کے پاس جو اس وقت پاورز موجود ہیں اور وہ جو ایکسرسائز کرتا ہے اپنی پاور، they do not only come from the constitution but they these powers are came from the other organs of the state، یعنی پریزیڈنٹ نے ادر آرگن آف دی اسٹیٹ کی جو پاور ہے ان کے اندر انکروچمنٹ کرتے ہوئے ان کو جب ایکسرسائز کیا تو ان آرگن آف اسٹیٹ نے جب اس کو پروٹیسٹ نہیں کیا، اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا اور اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا، تو اس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ود دی پیسج آف ٹائم، ہی بیکیم موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ۔ Executive powers of the President, Chief Administrator. The President is the head of national administration. All executive actions of the Republic are taken in his name. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. He sees to the implementation of the decisions of the courts and enforces the constitution and laws of the country for the performance of these functions. He sends directions to the various departments in the discharge of the executive functions. He is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. The ministers are appointed by the president and they remain in office so long as he is pleased with their work. The cabinet has been described as the president's family and he can override their decisions whenever he likes. The president is the national head of the national administration or national government. All executive actions of the republic are taken in his name, just like all executive actions in United Kingdom are taken in the name of Queen. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. He sees to the implementation of the decisions of the courts and enforces the constitution and laws of the country. For the performance of these functions, he sends direction to the various departments. President of United States is responsible for the enforcement of the federal laws and its treaties with foreign states throughout the country and
He is also responsible for the implementation of the decisions of the courts in the USA, and he is also responsible to enforce the Constitution, and he is also responsible to enforce the laws of the country. All these five actions, uh, he sends directions to different departments of government in USA. In the in the discharge of the executive function, he is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. The ministers are appointed by the president and they remain in office so long as he is pleased with their work. So, the president of USA, when discharged all the executive function, he is assisted by his ministers in cabinet, and these ministers are heads of various departments, and the appointment of these ministers are also made by the president. These ministers does not come from the Congress, and president can appoint anyone the member of cabinet or minister in cabinet. Unlike United Kingdom, the ministers come from uh, parliament, and in Pakistan, ministers come from parliament as well as from general public. In India as well. So in United Kingdom, the minister purely comes from parliament. In United States of America, the members of cabinet are ministers come purely from ordinary uh, people or general public. But in India and Pakistan, the cabinet is a mixed cabinet. So इसमें जो ऊपर फंक्शन being executive head of the administration और national government president डिस्चार्ज करता है, उनमें ये इसके जो कैबिनेट को मेंबर हैं वो मिनिस्टर्स हैं वो उसको असिस्ट करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ने की होती है, और वो किसी को भी अपना मिनिस्टर बना सकता है, मेंबर ऑफ कैबिनेट बना सकता है, एंड he can remove that minister from the cabinet with his own choice. जब तक वो चाहे वो उनको अपनी कैबिनेट में रख सकता है, और जब वो अधिक करे कैबिनेट से निकाल सकता है. तो cabinet has been described as the president's family, and he can override their decisions whenever he likes. तो जो प्रेसिडेंट है उसकी कैबिनेट को आथर जो है या यूरिस्ट कहते हैं कि ये जस्ट लाइक ए फैमिली, तो प्रेसिडेंट की फैमिली है. तो प्रेसिडेंट जो है उनके जो किए गए फैसले हैं कैबिनेट मेंबर्स के मिनिस्टर्स से, being the head of the cabinet or head of the state and head of the national government, उनको उनके किए गए फैसलों को ओवरराइड कर सकता है. Commander in Chief, the President is the Supreme Commander of Armed Forces of the United States, including land forces, air forces, and naval forces. As such, he is responsible for the defense of the country. He appoints military officers with the advice and consent of the Senate and can remove them at will. So, being Commander-in-Chief of the Armed Forces, the President of USA is responsible for the defense of the USA. So he may
appointments of the military officials at his own will, and he can also remove them from the office. Although the power to declare war rests in Congress, yet, yet, yet the president can make war unavoidable and necessary by his conduct in the administration. As for example, President Truman took police action in Korea without authorization by the Congress. During war, President's military powers increase enormously. He becomes the sole in charge of the uh, sole in charge of the military war operations. During World War II, President Roosevelt was given almost a blank check to conduct war on part of the unit. ये वीडियो बंद करें भाई एब्सेंट लगा देंगे मैं almost a blank check to conduct war on the part of the United States. He became a sort of constitutional as you know, the power to declare war is granted to Congress in Article 1 of the Constitution, but the President, being an executive head of the national government, can make it uh, unavoidable for the Congress to declare war with his conduct and actions. यानी वो काम ही ऐसे करेगा उसका कंडक्ट ही ऐसा होगा कि कांग्रेस को जंग डिक्लेयर करना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि पावर तो कांग्रेस के पास है जंग डिक्लेयर करने लेकिन प्रेसिडेंट के जो एक्शन है या उसका जो कंडक्ट है उसकी वजह से कांग्रेस जो है मजबूर हो जाएगी वार डिक्लेयर करने तो इन हिस्ट्री प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है वो उन्होंने कोरिया के अंदर पुलिस एक्शन किया without authorization by the Congress. So during war, president's military powers increases enormously and he becomes the sole in charge of the war operations. जब जंग शुरू हो जाती है चाहे वो कांग्रेस खुद डिक्लेयर करे या इन द रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल एक्शन जंग हो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर्स आ जाती हैं एंड ही बिकम्स सोल इन चार्ज ऑफ द वार यानी एक अकेला बंदा खड़ा है वो वार ऑपरेशन का इंचार्ज तो वर्ल्ड वार टू के अंदर जो रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट उनको ब्लैंक चेक दे दिया गया था टू परफॉर्म his function as in charge of the war operations. ब्लैंक चेक आप जब किसी को दे देते हैं तो उसको कहते हैं कि ये मेरे साइन है तो इस पे जितनी रकम आप लिखना चाहते हैं ये कैश करवा दो तो इसी तरह वर्ल्ड वार टू के अंदर उस वक्त जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनको आथर ये कहते हैं जूरिस्ट कहते हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स थी वर्ल्ड वार टू के दौरान ये ऐसा लगता था कि उनको एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है पावर्स का कि आप इस पे जो लिखना चाहें लिखें और उसको एक्सरसाइज भी करें परफॉर्म करें तो ही बिकेम अ सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर तो जब ब्लैंक चेक दे दिया गया पावर्स का तो वो ऐसा लगता था कि ही वाज दी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर डिक्टेटर जो होता है उसकी कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल बेस तो नहीं होती, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के आता है और सारी अख्तियार अपने कब्जे में ले लेता है। इसी तरह रूजवेल्ट के पास वर्ल्ड वार 2 में कितने इख्तियार थे, तो ऐसा लगता था कि वो एक डिक्टेटर है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड डिक्टेटर। तो जैसा कि आर्टिकल 1 में है कि जंग डिक्लेयर करना कांग्रेस की पावर है, वो प्रेसिडेंट जो है अपने एक्शन से ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है या रायनामा बना देता है कि कांग्रेस को जंग लड़ानी पड़ती है। तो हिस्ट्री के अंदर आप ये देख लें, जब ये इराक के खिलाफ जंग की गई बाई यूएसए एंड यूके, उस वक्त यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश जूनियर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वाज टोनी ब्लेयर। तो अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी के जितने मामला हैं उनको देखता है। तो उसका नाम है IAEA। उस अदारे का ये काम है कि वो ये देखता है कि मुल्कों के पास, जिन मुल्कों के पास एटमी टेक्नोलॉजी है, क्या वो फॉर द पर्पसेज ऑफ सिविलियन पर्पसेज है, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या इससे एटम बम बना रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई हैं भाई अमेरिका, तो उनको ये शक है कि ईरान की जो एटमी दे आर आल्सो मेकिंग एटम बम, तो पाबंदियां लगा दी गई। इसी तरह IEA के इंस्पेक्टर्स जो थे वो अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको मैंडेट दिया कि आप जाके इराक के अंदर जितनी एटॉमिक साइट्स हैं उनको विजिट करें और हमें रिपोर्ट दें कि क्या वाकया ही इराक के पास एटम बम है या नहीं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के जब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को के अंदर सबमिट की, तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इराक does not have any type of atomic, and chemical and biological weapons for mass destruction। तो इन्होंने बुश ने और टोनी ब्लेयर ने इन्होंने ये, आप कह लें कि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट गलत है। तो उसी प्रोपेगेंडा की बेस पे उन्होंने रायनामा हमवार की, अकबर और वहाँ मुजाहरे शुरू किए प्रेशराइज करने के लिए कांग्रेस को और पार्लियामेंट को कि आप जंग लगाए ना। तो फिर जंग इन्होंने लगाई, और उस जंग के बाद जब मिलियंस ऑफ लोग जो है मार गए, बच्चे जख्मी हो गए, डिसेबल हो गए, फिर जाके जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टीवी के ऊपर लोगों के सामने ये चीज़ एडमिट की और माफ़ी मांगी थी। इसी तरह टोनी ब्लेयर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर अवाम से माफ़ी मांगी कि हमने जब ईरान के खिलाफ जंग लगाई थी तो हमने झूठ बोला था। तो ये वही लोग हैं, ये दोनों ऐसी नेशन से बिलोंग करते हैं जिनको हम और आप फैसिनेट करते हैं कि ये लोग जो हैं ये झूठी लोग। तो इनके झूठ जो है ये तो इन्होंने खुद जो है एडमिट किए हैं अवाम के सामने। तो इस तरह हमें ये लॉ स्टूडेंट लोगों को इतना फैसिनेट नहीं करना चाहिए और हमें चीज़ों को रैशनली देखना चाहिए और अपनी अकल और समझ के मुताबिक सोचना चाहिए और किसी नतीजे तक पहुँच के अपनी राय तय करनी चाहिए। ऐसे लोगों के पीछे अपनी राय नहीं बनानी चाहिए और ना ही इनको आइडियलाइज करना चाहिए। ये तो आगे एक एग्जाम्पल के जब अपनी कांग्रेस पावर जो है डिक्लेयर करने की वो खुद इस्तेमाल करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद पहले जो हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट इज दी
of the state and head of the national government, and he is the symbol of national unity. ये concept जो है, इस concept of national centralized form of government also came from Islamic State. तो आप सल्लल्लाहु अमीर थे, जमात थी, जमात के बाद खिलाफत आई। तो ये कैसे कहते हैं, एक में जिस भी मुल्क के दो हुक्मरान हो गए वो मुल्क तबाह हो जाता है। इसी तरह उन्होंने ना एक ही हुक्मरान बनाया, एक ही हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया हुआ है महकमा। तो हमें वो कहते हैं कि नहीं जी आप प्रेसिडेंट भी रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रखते हैं और चीफ मिनिस्टर भी रखते हैं, ना भी चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा वो 30 जून को लेक्चर मिस हुआ था घंटे वाले में, वो लेक्चर हम कल देंगे जब आपकी क्लास वो एक क्लास हम देंगे और दूसरी क्लास वो जो मिस हो गई है वो क्लास हमने कल कर। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Any question? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट होगी उसके जो मेंबर होंगे वो कांग्रेस से भी हो सकते हैं या नहीं होंगे? नहीं होंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ कि इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका the members of cabinet of president, they come from ordinary people and he can be anyone but not a congressman. सर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड जनरल्स या बिजनेसमैन ये वगैरह हो सकते हैं, तो वो कांग्रेस के मेंबर नहीं, कोई भी हो सकते लेकिन हैं, कांग्रेस के मेंबर नहीं होंगे। हाँ जी, एक्स कांग्रेसमैन हो सकते हैं लेकिन मौजूदा नहीं। ठीक है सर, ये आवाज बंद करेंगे यार। सर आपने एंड पे कोई सर बात कही वो लेक्चर के मतलब सर वो उसकी आवाज नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दें। वो लेक्चर हमारा 30 जून को लेक्चर मिस हुआ था, तो हम कल पढ़ेंगे 1 बजे क्लास होगी। ठीक हो गया सर। वो क्लास मिस हुई तो आप लोगों ने वो क्लास ले लिया है क्योंकि मैंने अटेंडेंस अपलोड कर दी। सर जी कल को तो सर फ्राइडे है, जुमा पढ़ने जाना सर हमने। यार जुमा आपने पढ़ लेना है, जुमा कोरोना में नहीं मना किया हुआ, पढ़ लेना। नहीं सर जुमा है सर, ये कौन सा नमाज़ें भी सर हमारी मिस होती हैं, तो सर जुमा तो एक जेन्युइन इशू है ना सर। 1 बजे हम क्लास पढ़ेंगे, 1:30 बजे फिनिश कर देंगे, 1:30 बजे से 2 बजे तक आपका टाइम नहीं होगा। सर जी नहाना भी होता है सर, वैसे 1:30 बजे जुमा होता है। यार नहा पहले लेना, सुबह उठ के नहा लेना। क्या ख्याल है सर? गर्मी होती है। ये तो बहाने लोगे लाइयो। नहीं सर बहाने वाली बात नहीं, फ्राइडे का सर इसमें जुमा है सर, इसमें बहाने वाली। अच्छा फिर कोई कल आपने फ्री कब होना है? कर ले पहले।
सर मुझे तो ऐड कर ले, मैं कब से बोली जा रहा हूँ। ये आपने कब होना है? सर पहले कर लें लेक्चर, तो पहले सर मुझे आपने फ्री में निकाल 11 दिया। से 12 कर लें। हो गया। 12 मिनट। आप 3 से 4 नहीं भारत? सर तब भी हमारा लेक्चर है एक। कल की बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, कल की मैं भी बात कर रहा हूँ। 3 से 4 है लेक्चर? जी सर है। नहीं नहीं है यार, मैम का नहीं होना। हमें हम मैम का भी बाद में। चलिए सर आप बता दें कोई, सर 1 बजे के अलावा कर लें, कोई भी पहले कर लें या बाद में कर लें, उस टाइम कर लेंगे। नहीं, 3 से 4 बजे नहीं है ना आपकी क्लास? 3 से 4 पढ़ लेंगे। सर अगर ना हो तो वो सीआर आपको कंफर्म करके बता देगा, तो सर उस टाइम कर लें। यार मैं 3 से कंफर्म 4। नहीं कर लेता हूँ। 3 से 4 नहीं है लेक्चर। बस ये चलें आगे ठीक है सर। वो आपकी 3 से 4 होगी क्लास। चलें ठीक है सर। जुम्मा भी पढ़ा जाएगा और 3 से 4 क्लास भी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक होगा सर। कल फिर 2 क्लासें चलिए अब होंगी, 2 से 3 और 3 से 4 है, लगातार पढ़ा रहे। ठीक है, अजी 2 बजे तो जुम्मा होता है हमारे। तू कल्ला पढ़े ही ना फिर। 4 बजे भी होगा आपके इधर। सर लेट ऐड कर लेना फिर। मैं मजाक नहीं लगा लिया साहब, ਤੁਸੀਂ हर गल मजाक ही समझदे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 2 बजे होता है हमारे। सीरियस बच्चा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर लेट ऐड कर लीजिएगा कल को। हमें क्वेश्चन पूछ लो सर से। अल्लाह हाफिज़।